हेलो جی ہیلو جی جی میں محمد طفیل رضا شفیع بول رہا ہوں. ہاں بولیے. جی 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 انس رضا صاحب بول رہے ہیں نا؟ جی جی ہاں ارے یہ بتائیں. ہلو بھائی کہیں ہاں مصروف ہے کیا؟ میں نے ایسے بیٹھا ہوا ہوں ہوٹل کے ساتھ دوست کے ساتھ ہوں. اچھا اچھا میں کیا کہہ رہا تھا. ہلو ہاں سن رہا ہوں بولیے آپ. میری آواز اب تو اچھی مل رہی ہے نا ماشاء اللہ؟ ہاں ہاں آواز صاف آ رہی ہے. میں کیا کہہ رہا تھا کہ آپ کہے تھے کہ غوث پاک کی قافیے میں آپ جاتے تھے ہے نا؟ جی بتا رہے تھے کہ 11ویں شریف میں جاتے تھے اور کیا کیا کرتے تھے ہے نا؟ ہاں 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 اب آپ نہیں کرتے ہیں؟ نہیں نہیں اب نہیں کرتا ہوں. کیوں آپ جب پتا چلا کہ لوگ ان چیزوں کے دین میں کوئی اصل نہیں ہے تو چھوڑ دیا. کیا ہے کیا نہیں ہے؟ دین میں کوئی اصل نہیں موجود ہے. یہ بعد کے لوگوں نے اس کو ایجاد کیا ہے ایسا مجھے پتا چلا تو میں نے چھوڑ دیا. اچھا مطلب اس کے کرنے سے کوئی خرابی لازم آتی ہے؟ جی اس کے کرنے سے کوئی خرابی لازم آتی ہے؟ مطلب اگر ہم ثواب کی نیت سے کرتے ہیں ہاں عبادت کی نیت سے کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے خرابی لازم آئے گی. اور یہ دین میں ایک رسم ہے اور دین میں رسم اور رواج ہے نہیں. اصل میں یہ اس کو مطلب میں نے تلاش کیا پتہ کیا تو مطلب کہ یہ ایسا عمل جو ہے نہ تو صحابہ کرام سے ثابت ہے نہ کیا کہتے ہیں کہ قرون اولیٰ سے ثابت ہے نہ ان کے بعد کے جو ہے مطلب ہے محدثین حضرات وغیرہ بڑے بڑے علماء کرام نہ ان سے ثابت ہے. اچھا یہ سب کی جی اچھا ہاں جب ایسے مطلب ہم لوگ بولتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے ابھی کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم؟ جی یہ کس صحابی سے ثابت ہے؟ اس کی دلیل آپ دے پائیں گے؟ یہ بتائیے. یہ تو میرے نبی کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا گیا کہ یا نبی اللہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ کنجوس کون ہے بخیل کون ہے؟ ہاں ہاں تو صحابہ نے کہا فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ بہتر جانتے ہیں آپ بتا دیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے فقیر شخص وہ ہے جس کے سامنے میرا اس نگرانی یا میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے. ہاں میں الحمد للہ بہت اچھی بات آپ نے بتائی ہے. لیکن میں یہ اللہ علیہ وسلم جو درود شریف ہے یہ کس صحابی رسول نے پڑھا ہے اس کے متعلق میں پوچھ رہا ہوں. یہ درود شریف اس کی کوئی دلیل آپ حدیث سے ثابت قرآن و حدیث سے ثابت کر پائیں گے؟ یہ بتائیے. فی الحال تو بھائی درود ہے کہ نہیں ہے؟ درود شریف بالکل ہمارا درود شریف تو انکار نہیں ہے. سنیے میری بات کو جو آپ نے کہا تھا سنیے انس صاحب آپ نے کہا تھا کہ بیچ میں کوئی نیا کام ایجاد کرنا یہ خرابی لازم آتی ہے نا؟ مطلب جس کی اصل نہ موجود ہو. ہاں 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 لفظ دیگر اس کو یہ کہا جائے کہ اسے بدعت کہتے ہیں نا. ہاں آپ لوگ اس کو بدعت کہتے ہیں جیسے یا دیابنا یا اہل حدیث علماء دیوبند اہل حدیث وغیرہ یہ سب دین میں کوئی بھی نئی چیز ہو جس کو کرنے کو مطلب وہ سنت فرض واجب یا مستحب قرار دیتے ہوں اور اس کی دین میں کوئی اصل نہ موجود ہو کسی صحابہ کرام سے اور اس کو نہ کرنے والے پر کو جو ہے مطلب برا بھلا کہا جائے لعن طعن کیا جائے تو وہ چیز بدعت ہے. اچھا اب سنیے میری بات. ہلو یہ تھا کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے جناب محمد رسول اللہ تو آپ نے کہا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے نا؟ جی نہیں کہنا چاہیے. نہیں میرا انکار نہیں ہے. میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں. آپ نے جو میری بات سنی ہے آپ نے جو حکم لگایا تو آپ کے حکم سے یہ درود شریف صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیں کہنا چاہیے. اس لیے نہیں کہنا چاہیے کہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی صحابی رسول سے ثابت نہیں ہے. اصل تو ہے اصل تو ہے نا درود پڑھنا چاہیے یہ تو ہے نا. اچھا اصل تو اب یہ بتائیے کہ ایصال ثواب ایصال ثواب کا اصل نہیں ہے تو ایصال ثواب کا منکر کون ہے؟ اگر غوث پاک کے لیے ہم اگر ایصال کرتے ہیں فاتحہ کرتے ہیں تو کیا تو آپ کو کیا اصطلاح دکھا رہی ہے؟ تو غوث پاک کے لیے مطلب کیسا کیا طریقہ ہے اس کا؟ ہاں تو آپ بتائیں کہ آپ بریلویوں میں کیا خامی دیکھتے ہیں اور کیا مطلب آپ کے اعتبار سے ہونا چاہیے ذرا سا بتائیے. غوث پاک امت میں سب سے افضل شخص کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امت کی بات کر رہا ہوں بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی بات کر رہا ہوں. امت میں صحابہ کرام ہیں سب سے افضل
सबसे अफजल बादल अंबिया बित्तहकीक अमीरुल मोमिनीन अबी बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बराबर। तो आप उनके लिए इसाले सवाब करते हैं तो साल में कभी? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जब फातिहा करते हैं तो सबसे पहले कहते हैं, मालूम है क्या? जैसे 11वीं शरीफ साल में एक मरतबा गौस पाक के नाम पर करते हैं, इसी तरह हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला के नाम से, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला के नाम से, हजरत अली करमुल्लाह वजह के नाम से, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला के नाम से। अब आपकी बात मुकम्मल हो जाएगी तो सुन लीजिएगा जवाब। देखिए, आपने जो आपने सवाल किया तो इसका जवाब देखिए, जो हमारा दुआ, हमारी जो दुआ होती है, हम अपनी दुआ को बता देते हैं। पहले आप दुआ को समझ लीजिए तो आपको समझ में सारी बात आ जाएगी। मैंने क्या कहा कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआ को कबूल फरमा, हमारे पढ़ने में किसी तरह की गलती, खामी, गुस्ताखी, लफ्ज़ झूठी को इसको माफ फरमाकर अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। और इसका सवाब सबसे पहले बारगाह अहमद मुस्तफ़ा जनाब हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में नज़र करते हैं, इसे कबूल व मकबूल फरमा। अब सुनिए, सरकार के वालिदैन, उनके आल औलाद, असहाब में सहाबा इकराम हैं। सुनिए अज़वाज, तो मुकम्मल होने दीजिए। अज़वाज सुनी रहा, मैं कहाँ बोल रहा हूँ, मैं तो चुपचाप सुन रहा हूँ। सुनिए, अज़वाज मुत्तहरात में जितने भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजे मुतहरा है ना, समझ रहे हैं? तो अज़वाज मुत्तहरात में उनके लिए हम लोग नज़र करते हैं। फिर उसके बाद अब कितना नंबर? अज़वाज मुत्तहरात, ताबईन, तबा ताबईन, है ना। अब उसके बाद इतने लोगों के बाद अइम्मा मुज्तहिदीन, है ना। फिर उसके बाद पीराने पीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर सरकार की बारगाह में नजर करते हैं, इसे कबूल मकबूल फरमा। तो ये बताइए कि सबसे पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजर किया, फिर उनके वालिदैन के बारगाह में नजर किया, फिर उनके बाद उनके असहाब में ये जान लीजिए कि जितने भी सहाबी रसूल हैं उनके असहाब की बारगाह में नजर किया, फिर उनके बाद ये क्या नाम है, अज़वाज मुत्तहरात की बारगाह में नजर किया, उसके बाद तबा ताबईन की बारगाह में नजर किया, अइम्मा मुज्तहिदीन की बारगाह में नजर किया, फिर उसके बाद गौसे पाक की बारगाह में नजर किया। तो नजर किया से क्या मुराद है? नजर किया से क्या मुराद है? नजर करने से मुराद क्या है? मतलब उनके बारगाह में इसको नजर किया। उनको आप क्या गुनहगार मानते हैं क्या? हाँ, उनको आप गुनहगार मानते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तो जब गुनाहगार नहीं मानते हैं तो क्या उनके लिए कहेंगे, ये बताइए? हाँ, उनके लिए क्या कहेंगे? नजर ही कहेंगे ना कि भाई मैंने नजर पेश किया। नजर का मतलब क्या होता है भाई? नजर का मतलब मैं आपसे पूछा और समझ। नजर का मतलब ये होता है कि देखिए, नबी अकरम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, एक हदीस है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो कब्रों के दरमियान से जा रहे थे, ठीक है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक हुजूर की साख तोड़ी और उसको बीच से फाड़ा, एक इस कब्र पे डाल दिया, एक इस कब्र पे डाल दिया। सहाबा इकराम साथ में से पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपने ऐसा अमल क्यों किया, है ना? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दोनों कब्र वाले सख्त अजाब में गिरफ्तार हैं, है ना। तो सख्त अजाब में गिरफ्तार हैं। तो सहाबी रसूल ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनका कौन सा ऐसा गुनाह था जो ये गुनाह में ये मुब्तला है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक चुगलखोरी किया करता था और एक पेशाब के छींटों से नहीं बचा करता था, ठीक है। हाँ, बराबर। ये सख्त अजाब में मुब्तला है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, तो जो आपने ये हरी शाखें बीच से फाड़ करके डाली है तो इससे क्या फायदा होगा? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जब तक हरी रहेगी तो खुदा की तस्बीह और तहलील बयान करती रहेगी, है ना। हाँ, खुदा की तस्बीह और तहलील बयान करती रहेगी। तो ये मतलब उनके गुनाहों में कमी आएगी, गुनाहों में इफाका होता रहेगा, ठीक है। गुनाहों में कि अजाब में? हाँ, गुनाह अजाब में, मतलब उनके गुनाहों में कमी होती, तो गुनाह में अजाब में कमी होती रहेगी, है ना। अब एक चीज हो, अब एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप ये बताइए कि जितने भी, हेलो, हाँ बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। मैं बोलूँगा लाइन पर हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अखलाक अहमद बोल रहे हैं? कहाँ से? भागीरथपुर। अच्छा, अखलाक भाई लाइन पे रहे, जरा एक देवबंदी की धुलाई कर रहे हैं, लाइन पे रहे, बोलिएगा मत, खामोशी से रहिएगा। हाँ, तो सुन पा रहे हैं अनस भाई? हेलो अनस भाई, सुन पा रहे हैं? हाँ बोलिए। हाँ, तो ये बताइए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो है ये गुनहगारों के अजाब में इफाते के लिए ये अमल कर रहे हैं, ठीक है। अब ये बताइए कि अगर गौस पाक के मज़ार पे, है ना, या गौस पाक के कब्र पे अगर कोई फूल डाल दे
या अगर गौस पाक की कब्र पे कोई हरी शाख डाल दे तो इससे क्या मतलब लाजिम आएगा कि गौस पाक गुनहगार है माज़अल्लाह? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। किसी ने कहा है क्या गुनहगार? नहीं, हरी शाखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डाला तो ये तो इसका सबूत मिल गया ना कि भाई गुनहगारों के कब्रों पे हरी शाखें डाली जाती है ना। अगर गौस पाक के अगर कब्र पे अगर डाली जाती है वो तो आप वसल्लम से साजिश है, लेकिन आप ये वो हरी शाख जो डाली जाती है तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमल से साबित है। हाँ, तो ये सुन्नत है ना, ये सुन्नत हुआ ना। अब ये बताइए कि क्या अगर गौस पाक के कब्र पे अगर कोई हरी शाख डाल दे तो क्या आप इसे क्या कहेंगे कि गौस पाक क्या गुनहगार है? ये कह बता दीजिए। देखिए अब मैं आपको यहाँ से जवाब दे देता हूँ। सुन लीजिए अनस भाई, अब यहाँ से बता देता हूँ कि जो हरी शाखें गुनहगार, इसके बारे में जब आप तफसीरों पढ़ेंगे, हदीस शरीफ की तशरीह पढ़ेंगे, समझ रहे हैं, तो आपको इसकी वजाहत समझ में आएगी कि जो हरी शाख अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुनहगारों के कब्रों पे डाला तो यकीनन उनके अजाब में इफाते का वो सबब है, लेकिन वही अगर नेकोकार के कब्र पे डाल दिया जाए तो उनके मर्तबे बुलंद होते हैं, उनके दर्जात बुलंद होते हैं, है ना। तो उसी तरीके से फातिहा जो है दो तरीके का, एक है कि अगर गुनहगार के लिए, अगर किसी गुनहगार शख्स के लिए अगर इसाल करते हैं तो कहेंगे कि भाई या अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की आयत के सत्ते में, है ना, इस गुनहगार शख्स के अजाब में इफाका करते है ना। और इस अगर कहेंगे कि गौस पाक की बारगाह में, तो गौस पाक को तो माज़अल्लाह हम गुनहगार नहीं मानते, तो कहते हैं गौस पाक की बारगाह में इस नज़र को पेश करता हूँ, ए पाक परवरदिगार आलम इसको कबूल कर दे, है ना। ये हमारा अकीदा। तो अब ये बताइए कि इसमें कौन सी खराबी लाजिम आई? खराबी लाजिम आई? अरे भाई इसाले सवाब में कोई मुनकर है ही नहीं ना भाई। मैं क्या कह रहा हूँ, सवाब इसाले सवाब तो मुनकर है। साल में एक दिन मुतय्यन करके क्यों करते हैं? और उसका तरीका आपको ये किसने बताया कि देख चाहा के पूरे मोहल्ले वालों को जिनका पेट पहले से भरा हुआ है। आप इतनी देर से बोल रहे, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात खामोशी से, है ना। चलिए अब आप खामोश रहे, जरा मेरे को भी बोलने दीजिए कुछ, मैं बीच में नहीं बोला, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो उनकी कब्रों पर क्या कहते हैं कि हरी शाख डाली, ये आप सल्लल्लाहु का जो है ना खासा था, क्योंकि हमको आप वसल्लम को गैब के जरिए या वही के जरिए या किसी इल्हाम के किसी के जरिए मतलब आपको इल्म हुआ कि इनकी कब्रों पर जो है अजाब हो रहा है। हम आप किसी कब्र पर से गुजरेंगे तो हमको आपको इल्म में नहीं है कि इस अजाब कब्र वाले को अजाब हो रहा है या क्या सवाब मिल रहा है, ठीक है। दूसरी एक बात ये हो गई, हमको आपको नहीं पता कि कब्र में मैयत के साथ क्या मामला पेश आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर सल्लल्लाहु का खासा था कि आपको अल्लाह ताला ने बतलाया कि कब्र वाले को अजाब हो रहा है। दूसरी बात कि जब हम हुजूर सैयदना गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह को इसाले सवाब करते हैं, और इसाले सवाब का हम लोग भी करते हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर तमाम जो मोमिनीन इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, वफात पा चुके हैं, सबके लिए करते हैं। लेकिन हम उसके लिए साल में एक दिन मुतय्यन नहीं करते हैं। जब भी हमारा क्या कहते हैं कि ऐसा मौका लगता है हम करते हैं, तो हमारा तरीका ये है जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि आप कुछ खाना पकाइए, किसी गरीब मिस्कीन को, जरूरतमंद को उस खाने को खिला दीजिए और दिल में अपने ये नियत कीजिए, अल्लाह ताला से ये नियत कीजिए, ऐ अल्लाह इसका सवाब आप जो है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके बाद सहाबा तबे ताबईन और तमाम मोमिनीन जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनको पहुंचा दीजिए, और बेशक अल्लाह ही पहुंचाने वाला है। हमारा ये तरीका है। बताइए क्या हमारा ये तरीका गलत है? अच्छा, एक मिनट, आपने एक बात कही है, बड़ी अच्छी बात कही। अब इसका मैं आपको जवाब जो है देता हूँ। जानते हैं आपने अनस साहब ये कहा था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा इकराम, मैं आपकी बातों का महासल जवाब दे देता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हरी शाख डाले तो उनको गैब से खबर, भाई यकीनन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी उम्मत को किया है ना, तो जरूरत के तहत जो है वही नाजिल हुई और उसके बाद वो गैब से खबर मिलती थी, अल्लाह अता करता था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब बताते थे, ठीक है। और वो जो अमल करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को देते थे, वह अमल जो है सुन्नत होता था, वो अमल जो सुन्नत बन जाती है ना, आप जानते हैं वो अमल जो है सुन्नत बन जाता है। अब सुनिए मेरी बात, आगे की बात हर अमल सुन्नत नहीं बनती है। अच्छा, इस जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 कब्रों पे शाख डाला था, तो क्या अगर कब्र पे एक मिनट अगर किसी कब्र पे हरी शाख डाला जाए तो ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत होगी या नहीं होगी, ये बताइए। मैं कह तो रहा हूँ कि होगी, लेकिन जो ये कह रहे हैं क्लियर जवाब, अनस भाई क्लियर जवाब दीजिए, सुन्नत होगी या नहीं, ये अमल पहले बात बताइए। कह तो रहा हूँ हाँ,
होगी ना सुन्नत। लेकिन आपने जो ये कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर अमल सुन्नत होगा, ठीक है, आपका सुन्नत हमने ये सब कहा कि हर अमल सुन्नत होगा, अभी आपने कहा ना। आप गलत कह रहे हैं। मैंने कहा कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है वो सुन्नत है, मैंने हर अमल नहीं कहा है। अमल है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया है, समझ रहे हैं, वो सुन्नत है, लेकिन हर अमल सुन्नत है ये मैंने नहीं कहा है। अच्छा, ये नहीं कहा, चलिए ठीक है। अब दूसरी बात सुनिए, आपने कहा कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में न हो, उसकी असल मौजूद न हो, और अगर आज के जमाने में हो तो ये जो है क्या है, बिदात है और क्या है। तो ये एक किताब मेरे सामने है अनस भाई, हेलो, किताब का नाम है, ये देवबंदी हकीमुल उम्मत मौलवी अशरफ अली थानवी साहब की किताब है। किताब का नाम है बवादिरुन नवादिर, समझ रहे? क्या नाम है? बवादिरुन नवादिर। अच्छा, हाँ, अगर स्कैन चाहिए तो मैं अभी स्कैन भी भेज दूंगा। सफा नंबर 458। हाँ, सफा नंबर 458 फरमाते हैं कि जवाज की दलील यही काफी है कि अदम जवाज की कोई दलील न हो, है ना। मतलब ये कि किसी चीज के जायज होने की सबसे बड़ी दलील यही है कि उसके नाजायज होने की दलील न हो। तो अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सुनिए। अब जैसे मिसाल के तौर पे एक मैं आपसे बात पूछ रहा हूँ, जरा सा जवाब दीजिएगा। अनस भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मैं नाचता हूँ, नाज शरीफ भी पढ़ता हूँ, है ना, समझ रहे हैं। अच्छा, तो फर्ज कीजिए कि मैं मुंबई से कहीं भी, लखनऊ से एयरपोर्ट से मैं अल्हम्दुलिल्लाह न जाने कितनी बार फ्लाइट पे सफर कर चुका हूँ, समझ रहे हैं अनस साहब, हेलो। और आप जानते भी हैं कि फ्लाइट का सफर कितना मतलब ये होता है, खतरनाक होता है कि नहीं। तो बहुत बार हमने सफर किया, लेकिन हमारे वालिद साहब कभी सफर नहीं किए हैं अनस साहब, हेलो। हमारे वालिद साहब कभी सफर नहीं किए, तो ये मतलब गलत है ना। हम तो अपने वालिद के खिलाफ हो गए ना। कैसे? कैसे? अच्छा, अगर हमारे वालिद साहब अगर ये मना कर दें कि बेटा कभी फ्लाइट में सफर मत करना, और अगर हम उसके बाद सफर करें तो क्यों मना करेंगे? वो तो भाई, वो तो अलग मतलब दीन का मतलब। मैं क्या कह रहा हूँ, तो क्या सफर करना ये दीन का हिस्सा नहीं है? हाँ, सफर करना ये दीन का हिस्सा नहीं है? अगर क्या कहते हैं कि अल्लाह की खातिर सफर कर रहे हो, आपसे ये सवाल, अपनी अगर आप अपनी जरूरियात से सफर कर रहे हो, अनस भाई, मेरी बात सुनिए। आप ये कह रहे हैं, मुकम्मल नहीं हुई है अभी, बात मेरी मुकम्मल नहीं हुई है। आप सवाल पूछ रहे हैं, जवाब अभी सवाल मुकम्मल, मैंने आपसे ये पूछा, मुकम्मल करना। हाँ, मैंने ये पूछा कि अगर हमारे वालिद साहब ये हुक्म दे दें, हमारे वालिद भाई, माँ बाप का हुक्म बिल इत्तेफाक मानना, मतलब आप तो जानते ही है कि माँ बाप की बातों का इनकार नहीं किया जाता। अगर मेरे वालिद साहब ये हुक्म कर दें कि बेटा आज के बाद तुझको फ्लाइट से सफर नहीं करना है, ठीक है, और अगर उसके बाद हम सफर करते हैं तो हम अपने बाप के खिलाफ गए कि नहीं गए, इतना बता दीजिए। हाँ, गए ना, गए। मैंने आपसे पूछा कि हम जो है लखनऊ से कई बार ऐसा हुआ कि हम फ्लाइट से सफर कई शहरों कई मुल्कों का किए, ठीक है, तो हमारे बाप कभी फ्लाइट से सफर नहीं किए हैं। तो मैंने पूछा कि हम अपने बाप के खिलाफ हुए कि नहीं हुए, तो आपने कहा नहीं हुए। तो आपको मैं बता दूं कि भाई, अगर मेरे बाप ने सफर नहीं किया, बात मुकम्मल सुनिए, अगर हमारे बाप ने अगर सफर नहीं किया है और अगर मैं सफर करता हूं तो वो अपने बाप के खिलाफ नहीं किया। हाँ, अगर मेरा बाप मना कर दे और अगर उसके बाद मैं फ्लाइट पे सफर करता हूं तो ये अपने बाप के खिलाफ किया। आपके उसूल से मैंने साबित कर दिया। अब आपको ये साबित करना पड़ेगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कोई ऐसा अमल, जैसे मिलाद है, तो मिलाद उनके जमाने में, आप लोग का ये दावा है कि उनके जमाने में मिलाद नहीं हुआ, तो आपके उसूल से मैं ये पूछना चाहता हूं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने या सहाबी कराम ने, किसी भी सहाबी ने ये मना किया हो कि भाई मिलाद करना ये बिदात है। और मैंने आपकी किताब से ये साबित किया कि किसी चीज के जायज होने की सबसे बड़ी दलील ये है कि उसके नाजायज होने की कोई दलील न हो। तो ये तो मैंने साबित कर दिया। आपकी किताब अगर आप कहें तो मैं इसको स्कैन भेज दूं आपके यहाँ। तो नाजायज कौन कहता है? बिदअत कहते हैं ना आप लोग, तो मतलब बिदअत कहा जाता है ना। अच्छा, और दूसरी बात सुनिए, अब आप खामोश रहें, अब बहुत आप बोले ना, आप कुछ मुझे बोलने दीजिए। पहली बात तो आपने जो मिसाल दी अपने वालिद साहब से और अपनी सफर करने की मिसाल, ठीक है, ये कोई दीन का अमल नहीं है, दीन का हिस्सा नहीं है। ये दीन के नहीं पूछा है। आप मिसाल मैं दरमियान में मैं आपकी बात उसूल बयान करें, पूरी उसूल बयान करें। उसूल पूछा हूँ, खिलाफ का उसूल के खिलाफ होता कैसे, मैं ये पूछा हूँ, समझ रहे ना। सफर करना, मैंने आपसे कहा सफर करना, अगर आप अल्लाह के रास्ते में सफर कर रहे हैं तो ये कहते आपके लिए सवाब का बाइस है।
अपनी जरूरियात के लिए सफर कर रहे हैं तो कोई इसमें सलाह का अरे राइट भाई नहीं मैं है। उसूल ठीक पूछ है? रहा हूँ कि खिलाफ हाँ। होता कैसे है, मैं वो उसूल बता रहा हूँ कि खिलाफ कैसे होता है, और आपने अपनी जबान से ये बात मान भी लिया कि खिलाफ कैसे होता है। मना करने के बाद अगर कोई शख्स वो काम करता है तो वो मना करने वाले के खिलाफ गया, तो और अगर किसने आप कोई ये मना नहीं किया, आप अगर ये- अमल किया तो खिलाफ नहीं हुआ, ये हमने बताया है। आप ये कह रहे हैं हाँ। कि जिस काम के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना नहीं फरमाया है हाँ। वो हर चीज जायज है, आप ये कह रहे हैं, बिल्कुल। है ना? और हदीस शरीफ भी है। अच्छा, फिर इस बात का क्या मतलब हुआ कि जो भी दिन में नया काम ईजाद करेगा वो बिदअत होगी, हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है, इसका क्या मतलब है? फिर अच्छा, आपने हर फिर तो बिदअत फिर आप सल्लल्लाहु की हदीस है कि नहीं, कुल्लु बिदअतिन ज़लाला वज़लालतुन फिन्नार। अच्छा, तो क्या कहते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बिदअत गुमराही है, हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है, और आप ये कह रहे हैं, अरे सुनिए, और आप ये बिदअत की कह रहे हैं- तारीफ जरा कर दीजिए ना, अनस साहब बिदअत की तारीफ कर दीजिए। मैंने तारीफ तो किया ना, बिदअत की पहली तारीफ किया ना मैंने, हाँ, कि वो काम जिसे दीन का काम समझ के किया जाए, सवाब की नीयत से किया जाए, और वो सहाबा कराम से या मेरे नबी के हदीस या कदा खाबाइन के खैरुल कुरून के जमाने से ना मिलती हो, सहाबा की सुन्नत से भी ना मिलती हो, और उस चीज को दीन का अमल समझ के किया जाए, सवाब की नीयत से किया जाए, वो चीज बिदअत है। गोया कि हजरत ये तारीफ हाँ? किस किताब में लिखी हुई है, जरा सा बता दें। अभी आप मेरे से फोन पे बात कर रहे हैं ना, आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात कीजिए मैंने तो आपसे कहा कि मैं हाँ। आपको हदीस भी भेज दूंगा और वो किताब भी स्कैन हाँ, भेज तो दूंगा। मैं भी भेज दूंगा मैं आपको। अभी भेज देता हूँ ना। जरा ये किताब का नाम बता दीजिए, मैं किताब निकाल लूंगा, इंशाल्लाह अभी निकाल लूंगा। किताब ये किस किताब में ऐसी अरे तारीफ लिखी हुई है? हाँ, देखिए मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह ने मकतूबात रब्बानी में लिखा हुआ है, सफा नंबर बता दीजिए, सफा नंबर। अरे अब आप पूछेंगे पढ़ के बता दीजिए तो मुझे नहीं याद है सफा मैं नंबर, निकाल लूंगा। अरे अल्हम्दुलिल्लाह, आपसे बात करते करते मैं निकाल लूंगा। बताइए सफा नंबर बता दीजिए। अरे तो जब मुझे सफा नंबर याद ही नहीं है तो मैं कैसे बता दूं? नहीं, ये तारीफ नहीं लिखी हुई है मकतूबात रब्बानी में, समझ रहे हैं? लिखी हुई है तारीफ लिखी हुई है। अगर यही तारीफ लिखी हुई है, और अगर नहीं लिखी हुई होगी तो मैं क्या कहते हैं कि बरेली बन जाऊंगा, और अगर लिखी होगी मैं दिखा दिया तो आप बरेली छोड़ दोगे। आप ऐसा करिए कि अब जो है वो स्कैन भेजेंगे, उसके बाद हमारी आपकी बात हाँ करेंगे। रुकिए।